ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਡੀਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਸਰਵਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਲੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕੌਫੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਰਫਾਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਓਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਰਫਾਨ ਜੀ, ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਰਫਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਸਰ ਮਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਜਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਸਲੂਨਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਟਾਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ। ਸੌਰੀ? ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ। ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਜੈਂਟਸ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਹਾਂ। ਜੈਂਟਸ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੈਂਟਸ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ठीक है। की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? तो मेरा नाम है आमिर और मैं यहाँ पे एज अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड मैनेजमेंट संभालता हूँ। ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? इस टाइम पे ये अराउंड आप मान के चलिए फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है। अगर आपने एज अ बिज़नेस देखना है तो ये सबसे अच्छा ऑफर होता है, सैलून। बिकॉज आज के टाइम पे सलून के बिना मेरे हिसाब से गुजारा नहीं है। अगर आप कहीं पार्टी पे जा रहे हैं तो आपको हेयर स्टाइल एंड मेकअप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप कॉलेज में हैं तो उसके लिए आपको मतलब हेयर कलरिंग, लाइक स्ट्रेटनिंग, ये सब आपको चाहिए ही होता है। तो आज के टाइम पे जो है ये बहुत अच्छा ऑफ़र है एज अ बिज़नेस। और अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो पर्सनैलिटी वाइज भी सलून के बिना गुजारा नहीं है। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ? नहीं, ऑलमोस्ट दोनों ही होता है। मतलब लड़के भी डिपेंड करता है कि लड़के की सोच कितने की डिपेंड है। मतलब मेरे कहने का मतलब ज़रूरत के मुताबिक? नहीं, दोनों ही सेम हो जाता है ऑलमोस्ट। लड़के भी बहुत हेयर स्टाइल करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लड़के ऑलमोस्ट अपना, मेरे हिसाब से दोनों सेम ही खर्चा होता है सबका, लड़कों का भी एंड लड़कियों का भी। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 10 15 20 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? उसका कारण ये होता है सर, एक तो हॉस्पिटैलिटी, एक केयरिंग, क्लाइंट की केयरिंग। दूसरी चीज़ ये है कि हम क्लाइंट को एज अ प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं, तो उसका यही रीज़न होता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास पूरी, अगर आपको जैसे मान के चलिए मास्क वगैरह हम पूरा वो करते हैं, ठीक है, सैनिटाइज हमारा पूरा होता है, टूल्स हमारे सारे सैनिटाइज होते हैं, सब कुछ हमारे पास, उसकी पूरी केयरिंग करते हैं हम, उसकी पूरा देखभाल करके हम करते हैं। मैंने देखा आपके पास काफ़ी स्टाफ है, तो इनकी जो सैलरीज होती हैं मतलब अप्रॉक्सीमेट कितनी होती होंगी? अराउंड 30 से अबव ही जाएगा पर पर्सन। इतनी सैलरी होती है इन लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल सर। जो भी आपके पास हेयर ड्रेसर हैं या मेकअप वाले हैं या जो भी हैं, जी जी, इतनी सैलरी होती है? पर पर्सन हमारे पास इतनी स्टार्टिंग हो जाती है, ओके। उसके ऊपर ही है, उसके नीचे नहीं है। आपकी कितनी सैलरी है? मेरी 65। अरे बाप। तो मतलब ये काम चाहे आप बिजनेस ले लो, चाहे यहाँ पे नौकरी करनी है, जी जी, तो ये काम कोई भी बंदा सीख भी सकता है? बिल्कुल कोई सीख सकता है, इसमें कोर्सिंग भी है हमारी। अच्छा अगर अच्छा, कोर्स आप वगैरह कोर्स भी करवाते हो? जी अच्छा, आप कोर्स करवाते हो? बिल्कुल, अगर किसी ने करना हो तो कभी भी आके आप ज्वाइन कर सकते और मेरा आपकी सैलरी को देख के लगता है कि यार ये काम बुरा नहीं है। हैं। इससे ज़्यादा ले रहे हैं सर। आपसे भी ज़्यादा? हाँ, यहाँ पे किसी की सैलरी आपसे यहाँ ज़्यादा पे है? नहीं, अराउंड बेसिकली मैं वैसे चंडीगढ़ से हूँ, तो वहाँ पे मेरे से कई ज़्यादा है। अभी वहाँ तक पहुँचना है, वो टारगेट गोल तो है। मुझे लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है आपके यहाँ स्नेहा जी, उनकी सैलरी तो इससे भी ज़्यादा होगी। नहीं, उनकी जो है अराउंड 50 के करीब है। अच्छा। हेलो मैम। हेलो सर। हाय। हेलो, योर गुड नेम? स्नेहा सर। स्नेहा जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। थैंक यू ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ? सर। आप कुछ भी बोल सकते हो, मेकअप का भी बोल सकते हो, वैसे भी बोल सकते हो, क्योंकि सर आपको पता है क्योंकि मेकअप आजकल ट्रेंडिंग में बहुत है, और गर्ल्स तो मेकअप की डिमांड ही रखती है, चाहे आप फॉरेन लगा लो चाहे इंडिया लगा लो, मेकअप हमारे फेस को इनहेंस भी करता है। पहले जब हम सुनते थे कि जो लड़कियों की शादी हो जाती है हाँ जी, तो ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, हाँ जी तो अब कुछ चेंज हुआ है? यस सर, बहुत चेंज हुआ है आजकल सर। सभी फील्ड हो गई, जैसे कि एयर होस्टेस हो गया, वहाँ भी मेकअप की नीड पड़ती है सर। रिसेप्शन पे कहीं भी हो मेकअप की नीड पड़ती ही पड़ती है सर, क्योंकि इससे हमारे फीचर्स इनहेंस होते हैं, हमारी फेस के फीचर्स जो उभर के आते हैं वो मेकअप से ही होते हैं सर। मेकअप मुझे लगता है आजकल तो मतलब मेकअप आर्टिस्ट बोलने लगे हैं आप। हाँ जी, तो ये लड़की की उम्र भी छोटी है, हाँ जी सर, तो मेकअप करवा रही है ये, हाँ जी, तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हो आप, मतलब जैसे कुछ अलग से ब्रांड या कुछ और? हाँ जी सर, हम ब्रांड्स यूज़ करते हैं, बॉबी ब्राउन यूज़ कर लेते हैं, मैक के यूज़ कर लेते हैं, मेकअप स्टूडियो यूज़ कर लेते हैं सर। अलग अलग ब्रांड है और अलग अलग इनके इफेक्ट्स हैं। स्नेहा जी, जैसे मैंने कई बार सुना है कि मेकअप में भी कुछ अलग अलग चीज़ें आने लगी हैं, हाँ जी मतलब जैसे कोई केमिकल भी आता है, और केमिकल का प्रभाव जो बहुत अच्छे नहीं होते। मेकअप में बहुत मेकअप आता है, एक परमानेंट मेकअप भी होता है। कई गर्ल्स होती है सर, फॉरेंस में ज़्यादा अलाउड होता है कि मेकअप परमानेंट कराती है, जैसे आईब्रो करा लेती है परमानेंट, लाइनर परमानेंट होता है, लिपस्टिक परमानेंट होता है। जो डेली मेकअप नहीं कर सकती वो अपना परमानेंट ही यूज़ कराती है सर मेकअप। ओके, मतलब इसमें अलग अलग भी कुछ होता है कि वेडिंग के लिए अलग से या पार्टी के लिए हाँ जी मेकअप सर, अलग सभी से, मेकअप अलग अलग होते हैं। नॉर्मली मार्केट जाना है तो हाँ मेकअप? जी, हाँ जी, जैसे डेली यूज में करते हैं तो उसे न्यूड मेकअप भी बोल सकते हैं हम। जैसे हम सुबह मेकअप करते हैं, गर्ल्स न्यूड मेकअप कर जाती है, अगर पार्टी में जाना है तो थोड़ा तड़का भड़का मेकअप हो जाता है, तो इसी अकॉर्डिंग मेकअप करते हैं सर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पार्टी या अकॉर्डिंग टू फंक्शन? हाँ जी, तो इसमें जो मार्केट में है इसके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं आजकल तो। हाँ जी सर, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी महंगे आते हैं सर खुद भी। इतने महंगे? मतलब मैंने सुना कि कोई 5,000 का, 10,000 का, या तो ये लगा लो कि जो वेडिंग के लिए दुल्हन का जो मेकअप है वो तो 50,000 या लाख तक भी चला जाता है। हाँ जी, क्योंकि हम जैसे बेसिक्स मेकअप करते हैं उसमें हम थोड़े लो लेवल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम दूसरे मेकअप करते हैं ब्राइडल का होता है, थोड़ा ब्राइडल का मेकअप वैसा हो जाता है कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है, हाई कवरेज चाहिए होता है। क्योंकि अगर मान लो हमने इवनिंग मेकअप किया तो हमें हाई कवरेज नहीं चाहिए होती, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए मेकअप चाहिए होता है, लेकिन जो ब्राइडल होती है उसे सुबह से लेकर रात तक मेकअप चाहिए ही होता है, इसलिए वो हाई कवरेज के हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और वो मार्केट में बहुत एक्सपेंस होते हैं सर। मैम, जैसे कि शहर की जो लड़की है उसकी शादी है वो तो ठीक है,
मतलब गाड़ी में चढ़ के आएगी, मेकअप करवाएगी, चली जाएगी। लेकिन कई दूर से होता है या कहीं पे होता है कि आना जाना मुश्किल होता है, कि आपका ऐसा भी कुछ होम डिलीवरी टाइप भी कुछ है कि आप घर पे जाके मेकअप पिक करते एंड ड्रॉप भी होता है हमारा। अगर वो बोलते हैं कि मैम हम इतनी दूर नहीं आ सकते, वो अपनी तरफ से पिक एंड ड्रॉप लगा लेते हैं सर, उसके हम अलग चार्जेस ले लेते हैं, वो अलग चार्जेस पे कर देते हैं। हैं? ओके ओके, हाँ जी, थैंक यू प्लीज़ कैरी ऑन, थैंक यू। सर। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਸ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਣ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿੰਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ, ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।